Now we will read remaining part of lesson 7 of civics. Now, but the city is so large it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? asked Shankar curiously. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए तो बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, अब तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक वह क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। Yes, the work in the city is divided into different departments. So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after roads. I worked on accounts in the sanitation department, said Yasmin Khala, and they then went on to offer the children some kebabs to eat. दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी की लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। Jahangir ate his kebab at top speed, and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? The others were still eating when Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying all over the street. Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dogs, rats, and flies. Also, people get ill from the smell. At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they had get sick from staying on the streets too long. क्या होता था, जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिन बनाती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का ढेर लग जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बात, बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लग रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। Now a community protest. Yasmin Khalas continued. The women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. I said I could try and speak with some officer in the department, but I was not sure how long it would take. Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who elected him. She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked, then what was wrong? अब क्या हुआ? यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्लों की औरतें इन सब की से बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया, हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसने हमें चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। ठीक है। Gangabai described the situation in the locality to him. He promised to go with them the next day to meet the commissioner. He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was not being collected. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. That evening, children ran from house to
house, making sure that as many families as responsible signed the petition. उसके बाद क्या हुआ, गंगाबाई ने महिलाओं, वो पार्षद के घर पहुंची, गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत के बारे में बताया। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर क्या किया, दस्तखत करवाने के लिए कहा, साइन लेने के लिए कहा। और क्या था उस एप्लीकेशन में, उनके मोहल्ले से कचरा उठाने को की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलते जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी कि इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। उससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि उस एप्लीकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा साइन हो जाए। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसिलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस. The commissioner met with this large group and began giving excuses, saying that the corporation did not have enough trucks. But Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities." अब क्या हुआ, अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ, अगली सुबह क्या किया, बहुत संख्या में महिलाएं और पार्षद सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। ठीक है। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, क्विप्ड जहांगीर। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala. So did the streets get clean? Asked Rehana, who never let things remain unfinished. क्या हुआ? और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality become more regular. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. क्या हुआ? 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यह तो बिल्कुल बॉम्बे की फिल्म की तरह सुखद अंत हुआ। Said Mala, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. The children enjoying hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understand why. They got up and thanked Khala for the answering their questions, and then before they left, Rehana said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's idea?" Khala began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our street clean. When we sort out own garbage, it reduces their work. The children thanked Khala and walked back down the street. Together it had become quite late and they needed to get back home. For some reason the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other smiling and ran right back to Khala's house. अच्छा, फिर क्या हुआ? ये माला ने कहा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में अपने को देख के सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी, उन्हें लोग बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला को शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रहना ने कहा, खाला बस अब एक आखिरी सवाल हो रहा है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम अपने खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में।
अब हम अपने कचरे की छटाई कर देते तो नगर निगमों का काम आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए काला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी, उन्हें जल्दी से घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े।